final between Madhya Pradesh and Karnataka in Class 8 para table tennis category. Shashidhar Kulkarni, there you see in blue jersey on your TV screens, and his opponent Gajanan Parmar is about to start as two athletes. Gajanan Parmar has won the toss and he would be serving. Look to conclude the games and the entire event today. We have a great lineup of matches, especially on table 1. We have loads and loads of exciting action. After this, we have Raj Arvindan Alagar from Tamil Nadu. We saw गजानन परमार शुरुआती लम्हों में बढ़त बनाते हुए बैकहैंड ब्लॉक नेट पर फंसता हुआ यहां पर शशिधर कुलकर्णी का अच्छी रैली दोनों के तरफ से देखने को मिली और उसके बाद जो स्पिन से बाउंस जनरेट किया था गजानन परमार ने, उसको संभाल नहीं पाए। बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है। पहले गेम के आधार पर तो यही लग रहा है, अभी पहला गेम फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन जो नेट पर डिफ्लेक्शन का एडवांटेज शशिधर को मिलना चाहिए था, उसको अपने एडवांटेज में बदला गजानन परमार ने और इस गेम को अपने नाम किया। Gajanan Parmar gets ready at 1-1. That one tossing outside the table. There you see raising his arm in disappointment. Gajanan Parmar, a very animated character full of histrionics, and he's a delight to watch. Such characters actually make the game watchable and interesting, and keeps the interest alive, not only because it is the final, but as you rightly pointed out, such people will be interesting at any rounds. लेकिन अपने गजब के खेल के कारण बढ़त पर आ गए हैं। एक गलती शशिधर की और मुकाबले में 0-2 से पिछड़ जाएंगे वो। मौका मिला और अटैकिंग फोरहैंड ड्राइव को विनर में कन्वर्ट किया। लाजवाब प्रदर्शन। 11-9, 11-8 ये है स्कोर गजानन की तरफ से। Begin the game number 3 here. Gajanan serves, but that return from him in the backhand hitting the net. और गलतियां शशिधर की तरफ से हो रही है, उनको परोस कर दे रहे हैं अटैकिंग ड्राइव खेलने का मौका। इस बार फिर वही कहानी, लेकिन क्या कमाल का रिटर्न। फोरहैंड पर ब्लॉक था शशिधर कुलकर्णी का बिल्कुल निशाने पर, और गिव अप कर दिया था फोरहैंड अटैकिंग ड्राइव खेलकर गजानन ने। He is all set for that as Parmar served. I think he should be a little more aggressive. Another unforced error, landing it outside the table. Still not showing that any sign of aggression, Shashidhar Kulkarni, even when he's getting that opportunity. But Parmar going for that forehand and unfortunately landing it once again outside. Begin the game number 3 here. Gajanan serves, but that return from him in the backhand hitting the net. There you go, the same mistake on that occasion. It was Gajanan Parmar literally scooping it out of the table here. For Shashidhar Kulkarni, I am not seeing that little aggression that he should be showing, because if he just goes for a soft toss right in the center though. But he will have to take his chances. मौका था और मौका भुना लिया। बढ़िया रिटर्न वहां पर फोर्स्ड एरर आता हुआ, स्पिन को नहीं संभाल पाए शशिधर कुलकर्णी, और एनिमेटेड इस फाइनल मुकाबले को मध्य प्रदेश के गजानन परमार ने अपने नाम किया।
Prachi Pandey representing Uttar Pradesh up against Dhwani Shah from Gujarat in this Class 7 para table tennis final. Prachi Pandey serves. Quickly opening account, Dhwani Shah on that occasion making an error there. Prachi Pandey landing it outside the table. Prachi Pandey will serve. Nicely served on the sidelines of the table. A great backhand return cross table. Excellent shot there from Prachi Pandey as she holds on to her serve and moves on to 4-1. Nicely served once again that angle and using that space on the right side of Dhwani Shah. इस बार बैकहैंड ब्लॉक फंसता हुआ गेम पॉइंट पर पहुंच गई हैं प्राची पांडे और गेम पॉइंट फिनिश कर लिया है। 1-0 की बढ़त इस फाइनल में पहले गेम में 11-3 से प्रभावशाली जीत, एक तरफा जीत प्राची पांडे की। Dhwani Shah will serve. गेम नंबर 2 यहां पर शुरू होता हुआ और पहला अंक मिलेगा ध्वनी शाह को। बैकहैंड पर गलती हुई वहां पर प्राची पांडे से। एक और बढ़िया सर्विस, फोर्स्ड एरर आया है ध्वनी शाह की सर्विस पर प्राची पांडे की तरफ से और बढ़िया सर्विस इस बार प्राची की तरफ से। बैक टू बैक सर्विस पर अंक हासिल किया, एक अंक ध्वनी को, एक अंक प्राची को। And now she will be serving for game. A little extra force on that backhand return from Prachi Pandey, helping the cause of Dhwani Shah, giving her one more point as she serves from 6-10. But that unforced error has sealed the game. 11-6. Comfortable victory for Prachi Pandey in game number 2 as she opens her account in game number 3. Prachi Pandey with the serve. Nice cross-court backhand return, but equally good response from Prachi Pandey there. मैच पॉइंट पर हैं और बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, लाजवाब बैकहैंड पर यह विनर आता हुआ और इसके साथ ही प्राची पांडे ने 3-0 से इस फाइनल को अपने नाम कर लिया है। केरल और राजस्थान की टीमें तैयार। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच, कोशिश और ये रिबाउंड पर तो गोल होता ही है। तो पहला गोल मिला तो केरल, जिन्हें आदत है गोल स्कोर करने की। तो प्रयास यहां पर था, पहले एक मजबूत राइट फुटर, लेकिन वो गोलकीपर रोकने में कामयाब रहे। लेकिन सही समय पर सही जगह पे मौजूद रहना भी अपने आप में एक कला है। देखिए किस तरीके से मोहम्मद अजनस ने ये गोल किया। केरल के हाफ में बड़े समय बाद एक गेंद गई है। राजस्थान ने प्रयास जरूर किया, लेकिन अब नतीजा ये हो गया कि उनके डिफेंस में लोग कम हो गए। मोहम्मद अजनस अपने साथी की तलाश करते हुए, डिफेंडर मौजूद राजस्थान के लिए। केरल अच्छा प्रयास, मोहम्मद अजनस फिर सीजो गेंद मांगते हुए, पास, लेकिन खुद ही अकेले छकाते हुए। अब गेंद आ गई है सीजो के पास और वो देख रहे हैं कि कितने मौके उनके पास हैं, क्या करूं, दाएं से जाऊं, बाएं से जाऊं। फिर उन्होंने एक और गोल कर दिया, चौथा गोल उनका इस मैच का। मध्यांतर का समय हो गया। मुकाबले की शुरुआत होती ही दूसरे हाफ की और एक बार फिर से पोजीशन रहेगा केरला के पास और केरला लगातार प्रभावित किया है इस टीम ने और इस समय यहां मौका फिर से एक बार बना है। मोहम्मद अजनस है वहां पर, कोशिश कर रहे थे गेंद को कंट्रोल करने की, लेकिन जैसे तैसे ये गोल बचाया है। देखिए किस तरीके से गेम शुरू हुआ, बहुत खूबसूरती से अजनस को ढूंढा और हल्का सा हैवी टच जिसकी वजह से वो मौका हाथ से निकला।
9 नंबर की जर्सी नवल किशोर। वैसे नवल किशोर अक्सर लाइन को लीड करते नजर आते हैं। फिलहाल एक बार फिर से सीजो जॉर्ज गेंद लेकर वहां मौजूद थे बॉक्स के पास, लेकिन मौका नहीं मिला और राइट फ्लैंक को चूज किया छोटे छोटे पास के जरिए। एक बार फिर से प्रवेश किया है मोहम्मद अजनस, टैप इन करने का प्रयास है, अभी भी गेंद कंट्रोल में आई नहीं है और जैसे तैसे बचाया है यहाँ पर इस गोल को राजस्थान की टीम ने। देखिए क्या खूबसूरती के साथ ये मौका मिला और पैरों से रोका गोलकीपर ने। रेफरी ने मुकाबले को फिनिश किया है, खत्म किया है, क्योंकि विरोधी टीम के पास पूरे पर्याप्त खिलाड़ी नहीं थे कि इस मुकाबले को अंजाम तक पहुंचाएं और इस वजह से यहीं पर इस मुकाबले को खत्म किया है रेफरी ने। तो 10-0 से इस मुकाबले को जीत लिया है केरल ने और फाइनल में प्रवेश किया है। तमिलनाडु बनाम केरला। और एक बार फिर से फाइनल की शुरुआत होती हुई, रेफरी की सीटी इस बात का इशारा करती हुई कि फाइनल को शुरू किया जाए और शुरुआती लम्हों में अटैक पर निकल चुके हैं। सीजो जॉर्ज बॉक्स में प्रवेश किया है, क्रॉस किया है, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे अजनस मौजूद थे, लेकिन बढ़िया बचाव वहां गोलकीपर का। कप्तान एम कार्तिक थे जिन्होंने वो बचाव किया था, अन्यथा पहले ही मिनट में एक गोल आ सकता था। क्या जबरदस्त शुरुआत रही है, एंड टू एंड एक्शन, लगातार हमले बोल रही है ये टीम और ये फाउल थ्रो इन जिसकी वजह से अब तमिलनाडु को थ्रो इन मिली है। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत, अंडर आर्म थ्रो इन ही आप ले सकते हैं। सीपी फुटबॉल के अंदर इसी बीच सीजो जॉर्ज को एक बार फिर से गेंद मिली थी और उन्होंने प्रयास किया था गोल पे एक बार फिर से अटेम्प्ट आया वहां पे मोहम्मद अजनस के द्वारा, लेकिन फिर से एक बार गोलकीपर का अच्छा बचाव, गेंद की लाइन में आए और गेंद को बाहर पहुंचाया था वहां पर, अन्यथा एक और गोल आ सकता था। और इसी बीच ये हाफ टाइम विसिल आती हुई 3-0 से हाफ टाइम पर केरल आगे है। दूसरे हाफ की शुरुआत होती हुई जहां नीली रंग की जर्सी में इस समय अटैक पर निकली है तमिलनाडु की टीम, जबकि रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में खेल रही है केरला की टीम। और केरल की टीम राइट टू लेफ्ट, जहां तमिलनाडु की टीम अटैक करेगी तो वहीं लेफ्ट टू राइट अटैक करेगी केरल की टीम। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी इस समय तमिलनाडु कोशिश कर रहा है वो वापसी करने की, वो वापसी एक गोल की जरिए हो सकती है, लेकिन वो गोल कैसे आएगा, क्योंकि इस समय 3-0 से लीड करती हुई ये टीम। 5 मिनट इस मुकाबले में बचे हैं निर्धारित समय में और अभी भी हमले पर केरल की टीम। मोहम्मद अजनस, सीजू जॉर्ज एक बार फिर से कमाल का गोल, बॉक्स के बाहर से लेफ्ट फुटर, पिछली बार बाहर गया था लेकिन इस बार जाके नेट्स में समाई है ये गेंद और 5वां गोल और ये हैट्रिक पूरी करते हुए सीजू जॉर्ज 63वें मिनट में, यानी ये आखिरी मिनट होगा और अब रेफरी के विसिल की तरफ हमारी नजर होगी और एक बार फिर से गेंद को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और 7-0 से आगे है और आगे रहेगी ये टीम। फाइनल विसिल आती हुई रेफरी की और स्वर्ण पदक नाम हो चुका है केरला के। फाइनल में तमिलनाडु को एक तरफा मुकाबले में 7-0 से परास्त किया है। हरियाणा के नाम गया है कांस्य पदक सीपी फुटबॉल के अंदर। जबरदस्त प्रदर्शन हरियाणा ने दिखाया, खुशी का लम्हा। फाइनल जरूर हारे हैं लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम किया है टीम तमिलनाडु ने। टीम केरला बनी है स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक गया है केरला के नाम, तो वहीं रजत पदक तमिलनाडु और कांस्य पदक गया है हरियाणा के नाम। सीपी फुटबॉल खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के अंदर ये पदक विजेता।
स्पोर्ट्स क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, और इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप ना केवल सिर्फ फील्ड पे बल्कि ऑफ द फील्ड पे उसकी जरूरत होती है। और इसीलिए कहा गया है कि जो खेले वो खिले। बस इसी मोटिव के साथ खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। पहली बार 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उसमें यूनिवर्सिटी गेम्स को शामिल किया गया, फिर विंटर्स गेम को शामिल किया गया, और अब देखिए 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी इन खेलों का हिस्सा बना दिया गया है। 1400 एथलीट्स यहाँ पर अपनी अपनी चुनौती रख रहे थे। 7 स्पोर्ट्स को इस इनॉग्रल एडिशन में जगह मिली, और कुल मिला के क्या जबरदस्त मुकाबले हमने देखे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में यहाँ। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेडल्स टैली किस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी गेम की सबसे बड़ी जो वेट होती है ना, वो इसी चीज का होता है कि कौन सी टीम ने जो है टॉप पर फिनिश किया है। हरियाणा जो है टॉप पोजीशन पे पहले ही दिन से जो है टॉप पोजीशन पे बना रहा, और वहां पर उन्होंने पायदान में 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल मेडल्स टैली 105 की है। उसके पीछे रहे उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे, जिन्होंने 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए, और टोटल मेडल उनके रहे 62। तीसरे पोजीशन पे फिनिश किया है तमिलनाडु ने, 20 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ उनकी टोटल मेडल टैली थी 42। चलिए तो अब आपका इंतजार समाप्त होता है, क्योंकि मैं आपको सीधा ले चल रही हूँ क्लोजिंग सेरेमनी की ओर। अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन कीजिएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विशेष रूप से हम स्वागत कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। करतल ध्वनि के साथ आप उनका अभिनंदन कीजिएगा। हमारे बीच है प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदरणीय दीपा मलिक जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदरणीय श्री संदीप प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारीगण, टीम के सदस्य, प्रतिभागी, खिलाड़ी और यहाँ उपस्थित सभी मान्यगणों का इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया, जो आज संपन्न हो रहा है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 खिलाड़ियों ने 7 डिसिप्लिन्स में विभिन्न खेलों में 8 दिनों तक हौसलों की उड़ान भरते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। कन्याओं की, महिलाओं की शक्ति, क्षमता, शौर्य और समर्पण को नमन करती पेश है ये नृत्य प्रस्तुति, नृत्य रागिनी। चोरियां चोरों से कम है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग प्यारे, पग प्यारे, पग प्यारे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता धरती सुने करते हैं तारे, दंगल दंगल
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, छुड़ा दे। उंगली पे सबको नचा दे, नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री शनराग सिंह ठाकुर जी से, कृपया वे मंच पर आने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, निवेदन कर रहे हैं प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आदरणीय दीपा मलिक जी से, कृपया वे भी मंच पर आएँ। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल आदरणीय श्री संदीप प्रधान जी से भी अनुरोध, कृपया वे भी मंच पर आएँ। जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन कीजिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हमारे माननीय खेल मंत्री शनराग सिंह ठाकुर जी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और विजन का ही परिलक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। And let me first welcome and thank all the para-athletes, coaches and support staff who are present here. It is with great pleasure and pride we started this Khelo India Para Games 2023, and the organization of the first Khelo India Para Games is a momentous occasion, and it marks a new chapter in the history of sports in India. प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और ये खिलते हुए चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं. Now as the curtain falls on this historic edition of the Khelo India Para Games, 1,000 spotlights have illuminated every one of you. You have painted this arena not just with your victories, but with your stories, your spirit, and your unwavering passion. The past few days have been filled with stories of triumph, resilience, and the indomitable human spirit. We see not just medals, but milestones. We see the emergence of new talents, the setting of new records, and the shattering of old prejudices. This is the new India envisioned by the Honorable Prime Minister Modi. The Khelo India Para Games have been a catalyst, a spark that has ignited a fire of inclusion across the nation. Let this be the beginning of a new era, where para sports are not just an afterthought in Indian sports. Let every stadium become their stage, every cheer their anthem, and every victory a testament to the boundless potential of the human spirit and हौसलों की उड़ान. Thank you very much for your contribution, all the athletes. Good luck to you all. Thank you. जय हिंद, जय भारत. तो अब माननीय मंत्री जी अपने करकमलों द्वारा टॉप परफॉर्मिंग कंटिजेंट्स को ट्रॉफी प्रदान करेंगे, और सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं सेकंड रनर अप फॉर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, दैट इज तमिलनाडु. फर्स्ट रनर अप के लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के विनर हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कंटिजेंट को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं.
और अब आमंत्रित करने जा रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के चैंपियन हरियाणा राज्य के कंटिंजेंट को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए।